Hello students, very welcome in this online class of basic geometrical ideas. हमारे डे टू डे लाइफ में कई ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं जिसको हम देखते हैं, फील करते हैं और दिमाग में उसका कंस्ट्रक्शन बैठा कर रखते हैं। जैसे आपसे कोई बोला कि फुटबॉल लेकर आओ तो आपके दिमाग में आता है कि वो शेप जो होगा वो स्फेरिकल होगा। कोई बोलता है कैरम बोर्ड लेकर आओ तो वो स्क्वायर का शेप में होगा, बुक तो रेक्टेंगल के शेप में होगा। तो इस तरह से हम लोग हमारे आसपास जितने भी स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो नज़दीक हो, घर में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो, तो वो हर ऑब्जेक्ट का एक अपना पर्टिकुलर शेप है और उस शेप का हम नेमिंग और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। चाहे शेप कैसा भी क्यों ना हो, वो सब एक पॉइंट से बना हुआ है एंड वो सब एक पॉइंट को मिलाने से लाइन और लाइन से बना हुआ है और लाइन को मिलाने से प्लेन। तो हम लोग उसी शेप पे बात करने जा रहे हैं। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस the important chapter of mathematics of class 6, that is basic geometrical ideas। यहां से हम ज्योमेट्री को शुरू करेंगे और ज्योमेट्रिकल आइडियाज को डेवलप करेंगे। व्हाट इज ज्योमेट्री एंड व्हाट आर द बेसिक टर्म्स इन ज्योमेट्री। देयर आर मेनी बेसिक फिगर्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कई फिगर्स होते हैं, लाइक दिस इज सर्कल, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज योर स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल, etc. There are so many figures. This is line, ये आपके पास line है, this is ray, this is line, this is ray, this is line segment, ये क्या है? This is line segment, this is point, ये क्या है? Point है, this is rectangle, this is square, this is triangle, this is circle. There are so many figures in geometry. There are many basic figures of geometry we need to understand in order to construct other geometrical figures. In this chapter, students, we shall introduce those basic figures and how they will be used to construct the other figures. Let us begin our study of geometry with the basic figure, that is point, line and plane. We will discuss here point. What is point? What is line? And what is plane? What is plane? What is point? Point, a geometrical figure having no length, no breadth, no height. That means a point is a location on the plane or in space. It has no thickness. Point is the location. It is a location. Location on a plane or in space. On a plane or in space. It has no thickness, no dimension, no dimension. Dimension means length, breadth, height. This is a point is named by capital letter of alphabet as a point A in the adjoining figure. किसी पॉइंट को जब मेंशन करते हैं तो जनरली इसको हम किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. दिस इज द कैपिटल लेटर A. Take a thin sharp pencil and touch its end. इससे हम कहीं पे एक पॉइंट दे सकते हैं. दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज लाइन. तो लाइन के बारे में हम लोग देखते हैं. लाइन क्या है? ये तो दोनों पॉइंट रहा पॉइंट के रिगार्डिंग. दिस वन एंड दिस वन इज रिलेटेड टू पॉइंट. व्हाट इज लाइन? लाइन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन इन सिंगल पाथ. इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स. इट इज the set of all points in a plane, in a plane, in a plane, in a plane, in a single path, in a single path, in a single path. Line has no thickness or width. It has
नो थिकनेस और width. A line is usually named by 2 points taken on it. किसी लाइन को हम जब भी मेंशन करते हैं तो कोई 2 पॉइंट इस पे डिनोट करेंगे. लेट दिस इज ए, दिस इज बी. मान लिया किसी लाइन को जब ड्रॉ कर रहे हैं तो उस पे हम क्या किए, दो कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आर्बिट्ररी पॉइंट, और उससे हम लाइन को लिखते हैं, शो करते हैं. दिस लाइन इज ए बी लाइन. इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए बी line. Now, part of a line. Part of a line is denoted by this one. This is the part of line. This is called line segment. This is line segment. And we can denote a line by this one. This is your line. If we fixed any 2 point, this is A and this is B, then this particular fixed length is called line segment. And this is your ray. This geometry is called ray. ये क्या है, ray. And so many line will form a plane. So many line. This is line. That means you can say point, line and plane. This is point, this is line and this is plane are the building blocks of geometrical figures. ये geometrical figures के क्या हैं, building blocks हैं. Let this is a notebook. तो ये एक plane की तरह है. This is a plane. ये भी एक plane हो गया. This is plane. ये आपका plane है. ये सब plane हो गया यहाँ पर. तो यहाँ पर हम प्लेन को और अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ले सकते हैं, जिसको थोड़ा हो सकता है कि अभी नहीं समझ में आए. तो हम क्या करते हैं, दिस इज हियर वाई एक्सिस, इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. तो ये आपके पास एक्स वाई एक प्लेन है. ये क्या है, प्लेन है. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम लोग जो भी लिख रहे हैं दैट इज इन प्लेन. ये क्या है, प्लेन में है. जिसको हम टच कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, जैसे इसको हम छू पा रहे हैं, जिसको हम छू पा रहे हैं, दैट इज 3D फिगर. वो 3D फिगर है और उस 3D फिगर को हम प्लेन में नहीं बोलेंगे. प्लेन में है तो हम उसको अपने आंख को बंद करके हम छू कर नहीं बता सकते हैं. ब्रेल लिपि जैसे हम बोलते हैं, ब्रेल लिपि जो है वो उभरा हुआ होता है. उसमें लोग क्या करते हैं, टच करके पता करते हैं कि क्या लिखा हुआ है. तो वो 3D फिगर है. तो जो 3D फिगर होता है वो उभरा हुआ होता है. उसमें क्या है, एक और डायमेंशन है एक्स और वाई के अलावा जेड डायमेंशन. तो ये है हमारा प्लेन में जो भी हम काम कर रहे हैं, ये प्लेन में है. प्लेन जो फिगर होता है उसको हम आंख बंद करके छू कर नहीं बता सकते हैं. दिस इज इन प्लेन. तो यहाँ 3 जो कंसेप्ट है हमको समझना है. व्हाट इज पॉइंट. बहुत सारे पॉइंट को मिलाने से क्या बना, एक लाइन बना. जैसे पॉइंट 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 पॉइंट, इन सारे पॉइंट को एक फिक्स्ड ऑर्डर में हम मिला रहे हैं तो यू विल गेट अ लाइन. यूं तो जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, ऑल फिगर्स आर योर मेड बाय दिस इज पॉइंट. पॉइंट से ही बने होते हैं. लेकिन पॉइंट से क्या बना, लाइन. और बहुत सारे लाइन को अगर रखेंगे एक ऑर्डर में तो आपके पास बनेगा प्लेन. दैट इज प्लेन. प्लेन का मतलब है, लाइन का मतलब हो गया कि देयर इज ओनली लेंथ, नॉट ब्रेथ, नॉट हाइट. और पॉइंट का मतलब हो गया कि नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट. तो उस हिसाब से तो इसको दिखना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को एक्चुअली विजुलाइज करना है, समझना है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि दिखाते हैं. पॉइंट एक हल्का सा डॉट भी पॉइंट बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो भी हम लोग एक पॉइंट लेकर चलते हैं. बट जैसे डेफिनेशन है वो कहता है कि इट इज योर डायमेंशन प्लस. इसका कोई डायमेंशन नहीं है, लेंथ भी नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है, हाइट भी नहीं है. तो यहाँ समझना ज्यादा जरूरी है. इमेजिनेशन इज हियर वेरी इंपॉर्टेंट. Next, intersecting and parallel lines. What is intersecting and parallel lines? If we draw two lines L1 and L2 in space or in plane, मान लिया हम प्लेन में, ये प्लेन है हमारा, या स्पेस में भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ प्लेन के बारे में बात करेंगे बच्चों. तो प्लेन है हमारे पास.
If we draw L1 and L2 in plane, then there are two possibilities. तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ऐसा होगा कि दिस इज L1 एंड दिस इज L2. तो ये देखिए दोनों एक दूसरे को क्रॉस किया और ये कट किया. जहां पर कट किया उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं. दिस पॉइंट A इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ intersection, and L1 and L2 are intersecting lines. L1 and L2 are intersecting lines. ये कैसे लाइन है? ये ऐसे लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. And here second situation, ये situation A है, and second situation we can draw a line. This is L1 and this is L2, जो कि हमेशा एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे है. ये डिस्टेंस जो है वो हमेशा है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी है. ये डिस्टेंस फिक्स्ड है. दैट मीन्स L1 एंड L2 कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं. एग्जाम्पल है आपका रेल की पटरी. ट्रेन जो है उसकी जो पटरी है, ट्रैक है, रेलवे ट्रैक जो है वो एक दूसरे से मिल नहीं रही है. हाँ मिलती है कभी जब एक ट्रेन दूसरे ट्रैक पे जाती है तब मिलती है, लेकिन ये कुछ समय के लिए आप इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि दिस इज पैरेलल लाइन. तो ये हमारा क्या है? दिस इज पैरेलल लाइन. तो पैरेलल लाइन हो गया कि वो लाइन अंत तक एक दूसरे के साथ कभी इंटरसेक्ट या मीट नहीं कर रही है, तो दैट लाइन इज कॉल्ड पैरेलल लाइन. और ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन. यानी हम प्लेन में अगर लाइन को ड्रॉ करें तो यही दो तरह का लाइन हो सकता है. नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कर्व. व्हाट इज कर्व? व्हेन वी ड्रॉ अ लाइन ऑन अ पीस ऑफ पेपर विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल और पेन, बिना पेन को उठाए हम अगर कुछ भी ड्राइंग बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट दिस वन, फॉर एग्जाम्पल लेट दिस इज द स्ट्रक्चर. मान लिया ये कुछ स्ट्रक्चर हमने बनाया. फॉर एग्जाम्पल लेट दिस इज द स्ट्रक्चर, this is the structure. For example let this is the structure. For example let this is the structure. There are so many structures. The picture that are obtained by doodling on piece of paper are called curves. ये सारे क्या है हमारा? curves हैं. This is CURVES. ये सारे के सारे जो है curves है. पेपर पे अगर हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर पा रहे हैं तो that is called curve. A curve which does not cross itself is called simple curve. तो देखिए सिंपल कर्व कौन कौन सा है? दिस इज सिंपल कर्व. दिस इज सिंपल कर्व. एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है एक दूसरे को. दैट मीन्स दिस इज योर सिंपल कर्व. और सिंपल कर्व कौन सा है? दिस इज सिंपल कर्व. दिस इज सिंपल कर्व. ये देखिए क्रॉस किया एक दूसरे को. दिस इज नॉट सिंपल कर्व. दिस इज सिंपल कर्व. ये जो लाइन है दिस लाइन इज योर सिंपल कर्व. तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो एक लाइन है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज योर नॉट सिंपल कर्व. ये सिंपल कर्व नहीं है, तो ये हमारे पास सिंपल कर्व है. क्लोज कर्व. क्लोज्ड कर्व. A curve is said to be closed if it can be drawn without lifting the pencil and end at the point from where it starts. मान लिया हम बिना पेन उठाए इसको जहां से शुरू हुआ वहीं तक पहुंच गए, तो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व. मान लिया विदाउट रेजिंग आवर पेन जहां से स्टार्ट शुरू किया वहीं से पहुंच गया ये, तो दिस इज योर क्लोज्ड कर्व. दिस इज क्लोज्ड कर्व. दिस इज क्लोज्ड कर्व. This is closed curve. This is closed curve. Closed curve, that means a curve is said to be closed if it can be drawn without lifting. It can be if it can be drawn without lifting the pencil. Lifting the pen or pencil and ends at the point
ends at the point from where it starts, from where it starts, जहां से खत्म हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है वहीं से वो स्टार्ट भी हुआ था। दिस इज ओपन कर्व। मान लिया कुछ इस तरह का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये ओपन है, देखिए ये दोनों एंड एक दूसरे के साथ मीट नहीं कर रहा है। दिस इज ओपन कर्व, ये मीट नहीं किया। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए हियर, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, ये दोनों एक दूसरे के साथ मीट नहीं किया। दिस इज ओपन कर्व, ये क्या है, दिस इज ओपन कर्व। Curve which do not begin and end at the same point are called open curves. This is open curve. This is open curve. तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हमने कर्व को क्लासिफाई किया है दो कैटेगरी में, दैट इज क्लोज्ड एंड ओपन कर्व। नेक्स्ट, इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ क्लोज्ड कर्व। इंटीरियर एंड exterior of closed curve. A simple curve drawn on a sheet of paper divides the paper in three different parts. Let this is your any curve, and this part of curve is called interior part. This is here interior part, this part is interior part, and outside the curve this part is called exterior part. This is C, this is called exterior part or region, and this is the curve. ये जो curve line है, this is curve कहते हैं इसको, ओके इसको हम B से डिनोट कर रहे हैं मान लिया। तो सेट ऑफ पॉइंट्स जिससे ये कर्व का बाउंड्री बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड कर्व। दिस इज इंटीरियर एंड दिस इज द एक्सटीरियर ऑफ कर्व। दैट मीन्स यू कैन से अ सिंपल क्लोज्ड कर्व ड्रॉन ऑन अ शीट ऑफ पेपर डिवाइड्स द पेपर इन थ्री डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट वन इज इंटीरियर और इनसाइड, जिसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीरियर और इनसाइड। Second one is exterior or outside, and third one is boundary or on the curve, जो कि कर्व पर है। The interior region of the curve along with the boundary of the curve is called region enclosed by closed curve. Next, there are two types of boundaries. First one is curvilinear and second one is linear boundaries. तो फर्स्ट बाउंड्री को हम क्या करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। जब हम बाउंड्रीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे हियर बाउंड्रीज दैट मीन्स द आउटस्कर्ट, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द पेरीमीटर जिससे ये कर्व बना हुआ है। अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय कर्व्ड लाइन, अ सिंपल closed figure bounded by curved line is said to be bounded by curved line is said to be curvilinear boundaries, said to be कर्विलिनियर बाउंड्रीज। इसको हम कर्विलिनियर बाउंड्रीज कहते हैं। दिस इज कर्विलिनियर बाउंड्रीज, CURVILINEAR, कर्विलिनियर बाउंड्रीज। दैट मीन्स दिस इज कर्विलिनियर बाउंड्रीज। एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये इस तरह से, दिस इज कर्विलिनियर बाउंड्रीज। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन, अ सिंपल
closed curve bounded by स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में बात हो रहा है। स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर बाउंड्रीज, इज कॉल्ड लीनियर बाउंड्रीज, लीनियर बाउंड्रीज। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्ट्रक्चर, ये देखिए स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। इट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन, नॉट फॉर्म्ड बाय कर्व लाइन। दैट मीन्स on the basis of boundaries there are two kinds of boundaries. First one is your curved boundary, curved line से boundary बना हुआ है, that means curvilinear boundaries. And if boundary is formed by a straight line then this is called linear boundaries. Now we can also find many figures having both linear and curvilinear boundaries. कुछ ऐसे भी कर्व हैं जिनका बाउंड्री कुछ पार्ट के लिए, कुछ समय के लिए लीनियर है और कुछ समय के लिए कर्व लीनियर है। फॉर एग्जांपल दिस इज सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ रीजन को हम सेमी सर्कल कहते हैं। दिस इज, तो ये देखिए इतनी दूर तक ये लीनियर रीजन है एंड दिस इज योर कर्व लीनियर बाउंड्रीज, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये फिगर बना हुआ है। सो यू कैन से इट हैज बोथ लीनियर एज वेल एज कर्व लीनियर बाउंड्रीज। तो ये आपके पास लीनियर बाउंड्री है, दिस इज कर्व लीनियर बाउंड्री। नेक्स्ट फिगर देखते हैं कुछ इस तरह से। दिस इज, ये आपके पास कर्व्ड है एंड दिस इज यहां पर आपका, तो यहां से यहां आपको दिख रहा है दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन। तो जहां स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स दिस इज लीनियर बाउंड्री एंड दिस इज कर्व लीनियर बाउंड्री। फिर हम देखते हैं यहां पर कुछ इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर। तो यहां देखिए स्ट्रेट लाइन बट दिस इज कर्व, दिस इज कर्व। तो यहां देख रहे हैं फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, all three figures are closed curve, all three figures are here closed curve, but here all figures are, what difference is that all figures are made by two types of boundaries, that is curvilinear and linear, curvilinear and linear, curvilinear and linear. नेक्स्ट ज्योमेट्री पे बात करते हैं, दैट इज पॉलीगन। पॉलीगन, व्हाट इज पॉलीगन? अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। जो केवल और केवल लाइन, स्ट्रेट लाइन से बना हो और क्लोज्ड हो, स्ट्रेट लाइन से बना हो, क्लोज्ड हो, तो सबसे पहला जो ज्योमेट्री हमारे दिमाग में आता है दैट इज योर ट्रायंगल। दिस इज मेड बाय स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है एंड दैट इज क्लोज। क्या क्या दो पैरामीटर होना चाहिए? इट शुड बी क्लोज्ड एंड इट हैज लीनियर बाउंड्री, लीनियर बाउंड्रीज। दैट मीन्स इट शुड बी मेड बाय लाइन सेगमेंट। स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है और क्लोज्ड है, बंद है। नेक्स्ट फिगर, ये ट्रायंगल हो गया। फिर उसी तरह से हम लोग देखते हैं दिस इज क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, दैट मे बी रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है ये। फिर हम लोग देखते हैं अनदर फिगर इज रेक्टेंगल, ये हमारे पास क्या है, दिस इज रेक्टेंगल। नेक्स्ट फिगर दिस इज स्क्वायर। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है? इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज रेक्टेंगल, यहाँ पर ये लेंथ है एंड दिस इज ब्रेथ। यहाँ पर तीनों साइड इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, लेंथ लेंथ लेंथ, always remember. Here important term I am going to say, this is here rectangle, this is what? Rectangle, and this is square. All squares are rectangles. Square rectangle हो सकता है but rectangle is not square. स्क्वायर में क्या है, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। ये जो एंगल कॉर्नर जो होता है वो 90 डिग्री होता है। एंगल अभी नहीं पढ़े होंगे आप लोग, तो इसको आइडिया नहीं होगा आपको। चलिए इससे रिलेटेड बात बाद में करेंगे हम लोग। तो दिस इज द ज्योमेट्री। तो हम लोग देख रहे हैं कि पॉलीगन, कई तरह के पॉलीगन होते हैं और कॉम्प्लेक्स पॉलीगन भी हम फॉर्म कर सकते हैं, लाइक दिस। इस तरह से ये हमारे पास एक पॉलीगन बन गया। देयर आर 5 साइड्स, 1 2 3 4 5,
सिक्स साइड हेक्सागन बोलते हैं, दिस इज पेंटागन। तो इसी तरह से नाम चलते चलेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज पेंटागन, पेंटागन। ये मान लिया क्लोज फिगर हम ले रहे हैं कुछ इस तरह से, तो दिस इज सिक्स साइड, ये सिक्स साइड है, दैट मीन्स दिस इज हेक्सागन, दिस इज हेक्सागन। सो हियर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में हमने बहुत सारे बात को देखा। तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन दीज कंसेप्ट एंड ऑन डिस्क्रिप्शन आई हैव ऑलरेडी गिवन द लिंक ऑफ योर प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट जो दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट और कंफ्यूजन यू कैन send your doubt on the given number.